یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 31 مئی 2020 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: قدیم و جدید جادوگری، عرفیت، تنویم اور علم نومیت سے انکار۔ سنہری متن: یعقوب: خدا کے نزدیک جاؤ، وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ جوابی مطالعہ: پطرس: پس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ لیکن تم ہر ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں بیان کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب تم خدا کی امت ہو۔ اے پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں، کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو۔ درسی واز بائبل میں سے خروج: اور خدا نے یہ سب باتیں ان کو بتائیں۔ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ سیموئیل: اور سیموئیل مر چکا تھا اور سب اسرائیلیوں نے اس پر نوحہ کر کے اسے اس شہر راما میں دفن کیا تھا، اور ساؤل نے جنات کے آشناؤں اور افسون گروں کو ملک سے خارج کر دیا تھا، اور فلسطی جمع ہوئے اور آ کر شنیم میں ڈیرے ڈالے، اور ساؤل نے بھی سب اسرائیلیوں کو جمع کیا، اور وہ جلبوہ میں خیمہ زن ہوئے۔ اور جب ساؤل نے فلسطیوں کا لشکر دیکھا تو ہراساں ہوا اور اس کا دل بہت کانپنے لگا۔ اور جب ساؤل نے خداوند سے سوال کیا تو خداوند نے نہ تو اسے خوابوں اور نہ اوریم اور نہ نبیوں کے وسیلہ سے کوئی جواب دیا۔ تب ساؤل نے اپنے ملازموں سے کہا، کوئی ایسی عورت میرے لیے تلاش کرو جس کا آشنا جن ہو، تاکہ میں اس کے پاس جا کر اس سے پوچھوں۔ اس کے غلاموں نے اس سے کہا، دیکھ، عین دور میں ایک عورت ہے جس کا آشنا جن ہے۔ سو ساؤل نے اپنا بھیس بدل کر دوسری پوشاک پہنی اور 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر چلا، اور وہ رات کو اس عورت کے پاس آئے، اور اس نے کہا، ذرا میری خاطر جن کے ذریعہ سے میرا فال کھول، اور جس کا نام میں تجھے بتاؤں اسے اوپر بلا دے۔ تب اس عورت نے کہا، میں کس کو تیرے لیے اوپر بلا دوں؟ اس نے کہا، سیموئیل کو میرے لیے بلا دے۔ جب اس عورت نے سیموئیل کو دیکھا تو بلند آواز سے چلائی۔ تب اس نے اس سے کہا، اس کی شکل کیسی ہے؟ اس نے کہا، ایک بوڑھا اوپر کو آ رہا ہے اور وہ جبہ پہنے ہوئے ہے۔ تب ساؤل جان گیا کہ وہ سیموئیل ہے، اور اس نے منہ کے بل گر کر سجدہ کیا۔ سیموئیل نے ساؤل سے کہا، تو نے مجھے کیوں بے چین کیا کہ مجھے اوپر بلوایا؟ ساؤل نے جواب دیا، میں سخت پریشان ہوں، کیونکہ فلسطی مجھ سے لڑتے ہیں اور خداوند مجھ سے الگ ہو گیا ہے، اور نہ تو وہ نبیوں اور نہ خوابوں کے وسیلہ سے مجھے جواب دیتا ہے۔ اس لیے میں نے تجھے بلایا کہ تو مجھے بتائے کہ میں کیا کروں۔ سیموئیل نے کہا، پس تو مجھ سے کس لیے پوچھتا ہے، جس حال کہ خداوند تجھ سے الگ ہو گیا اور تیرا دشمن بنا؟ اور خداوند نے جیسا میری معرفت کہا تھا ویسا ہی کیا ہے۔ خداوند نے تیرے ہاتھ سے سلطنت چاک کر لی ہے،
और तेरे पड़ोसी दाऊद को अनायत की है, इसलिए कि तूने खुदावंद की बात नहीं मानी और अमालिकियों से इस कदर कहरे शदीद से पेश नहीं आया। इसी सबब से खुदावंद ने आज के दिन तुझसे ऐसा बर्ताव किया। माँ सिवाय इसके खुदावंद तेरे साथ इसराइलियों को भी फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा, और कल तू और तेरे बेटे मेरे साथ होंगे, और खुदावंद इसराइली लश्कर को भी फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा। तब शाऊल फौरन जमीन पर लंबा होकर गिरा और सैमुअल की बातों से नहायत डर गया। यसाया। और जब वो तुमसे कहें कि तुम जन्नात के यारों और अफसूनगरों को जो फुसफुसाते और गिड़गिड़ाते हैं तलाश करो, तो तुम कहो, क्या लोगों को मुनासिब नहीं कि अपने खुदावंद के तालब हों। खरूज। क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। मत्ती। और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था, और उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा न होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भौचाल आएंगे, और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। तस्लींकियों। ऐ भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि किसी रूह या कलाम या खत से जो गोया हमारी तरफ से हो, ये समझकर कि खुदावंद का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अक्ल दफतन परेशान ना हो जाए, और ना तुम घबराओ। किसी तरह से किसी के फ्रेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगिश्तगी ना हो। तिमोथियस। लेकिन ये जान रख कि आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, सरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संगदिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, मगर उसके असर को कबूल न करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। यहाँ रूह की एक हकीकी दिलकशी के सिवा कुछ नहीं है। सुई की नोक से कतर तक खुदा यानी इलाही अक्ल की सबको समेटने वाली ताकत या दिलकशी की निशानदही करती है। अच्छाई की जानब हर बढ़ता कदम मादियत परस्ती से अलहदगी है, और ये खुदा रूह की जानब एक रुझान है। मादी नज़रियात जुज़वी तौर पर मुतनाही, आर्जी और मुखालफ की एक बरक्स दिलकशी की बदौलत लामुतनाही और अबदी की जानब इस दिलकशी को मफलूज कर देती है। अगर इंसान को वाहिद बाप, जिसमें हम जीते और चलते फिरते और मौजूद होते हैं, की जानब अपनी कशिश और दिलकशी खो देनी चाहिए, और अगर इंसान पर इलाही असूल की बजाय
जिस्मानियत की हुक्मरानी रूह की बजाय बदन की हुक्मरानी होनी चाहिए तो इंसान फना हो जाएगा। रूह की बजाय जिस्म के वसीला खलक होते हुए, खुदा की बजाय मादे से शुरू होते हुए फ़ानी इंसान पर खुद की हुक्मरानी होगी। अंधे को अंधा राह दिखाए तो दोनों गिरेंगे। जज्बात और भूख दर्द पर इख्तिताम पजीर होने चाहिए। वो थोड़े दिनों के हैं और दुख से भरे हैं। उनकी फर्जी खुशियां धोखा हैं। उनकी तंग नजरी उनकी खुशियों की बेहुरमती करती है और उनकी कामयाबियों में कांटों की रुकावट डालती है। फ़ानी अक्ल जिंदगी और खुशी के गलत और मादी नज़रिए को कबूल करती है, मगर हकीकी ख्याल लाफानी सिमत से हासिल किया जाता है। सख्त मेहनत, कोशिश और दुख के वसीला बशर क्या हासिल करते हैं? वो अपने अक़ीदे को काबिल तस्खीर ज़िंदगी और खुशी की नज़र कर देते हैं, फ़ानी और मादी राख में लौट जाते हैं और लाफानी ही रसाई पाता है। फर्जी क़वानीन जिनका नतीजा मायूसी और बीमारी निकलती हैं, उसके क़वानीन नहीं हैं, क्योंकि सच्चाई का वाहिद जायज़ और मुमकिन अमल हमआहंगी की ही पैदावार है। फितरत के क़वानीन रूह के क़वानीन हैं। इलाही अक्ल बजा तौर पर इंसान की मुकम्मल फर्माबरदारी, प्यार और ताकत का मुतालबा करती है। इससे कम वफादारी के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रखे जाते। सच्चाई की ताबेदारी इंसान को क़ुव्वत और ताकत फराहम करती है। गलती की स्पुर्दगी ताकत की कमी को बढ़ा देती है। बदी की पहचान अलूहियत या इंसानियत का जौहर कभी नहीं थी। इंसानियत को ये सीखना चाहिए कि बदी कोई ताकत नहीं है, उसकी नाम नेहाद जबरी हुकूमत अदम के सिवा कुछ नहीं। जैसे कि क्रिश्चियन साइंस में नाम दिया गया है, हैवानी मकनातीसियत या इल्म नौमियात गलती या फ़ानी अक़ल के लिए ख़ास इस्तिलाह है। ये एक झूठा अक़ीदा है कि अक़ल मादे में है और कि ये अच्छाई और बुराई दोनों हैं, कि बदी अच्छाई जितनी हकीकी और ज़्यादा ताकतवर है। इस अक़ीदे में सच्चाई की एक भी ख़ुसूसियत नहीं है। ये या तो बेखबर है या हासिद है। नौमियत की हासिद शक्ल इखलाकी गिरावट में बुनियाद रखती है। हकीकत में कोई फ़ानी अक़ल नहीं है और नतीजतन फ़ानी ख़याल और क़ुव्वत इरादी की मुंतकिली नहीं है। ज़िंदगी और हस्ती खुदा हैं। क्रिश्चियन साइंस में इंसान कोई नुकसान नहीं दे सकता, क्योंकि साइंसी ख़यालात हकीकी ख़यालात हैं जो खुदा से इंसान में मुंतकिल होते हैं। क्रिश्चियन साइंस ज़हनी अमल के पैंदे तक जाती है और असबात अदल इलाही को ज़ाहिर करती है, जो पूरे इलाही अमल की दुरुस्तगी की तरफ इशारा करती है। जैसे कि इलाही अक़ल का इजरा और नतीजा मुखालिफ नामनहाद अमल की गलती होता है। बदी, सहरपरस्ती, जादूगरी, तनवीम, हैवानी मकनातीसियत, इल्म नौमियात। जैसे रोशनी तारीकी को नेस्त कर देती है और तारीकी की जगह हर तरफ रोशनी हो जाती है, इसी तरह मुतलिक साइंस में रूह या खुदा इंसान को सच्चाई देने वाला है। खुदाई हस्ती अच्छाई हमेशा से मौजूद है। ये इलाही मंतक में मानती है कि बदी अच्छाई की फर्जी मुखालिफ कभी मौजूद नहीं है। साइंस में खुदा लामुतनाही हाकिम कुल से अख्ज़ शुदा इनफरादी अच्छाई इंसान की तरफ से बह सकती है, मगर बदी तरसील पजीर है, ना साइंसी। एक गुनाहगार ज़मीनी बशर ज़िंदगी की हकीकत नहीं और ना ही वो वसीला है जिसके ज़रिए सच्चाई ज़मीन पर पहुँचती है। जब बदी और दुख तरसील पजीर होते हैं तो मुबाशरत की तस्कीन गुनाह का मजाक बन जाती है। इलाही कानून नहीं, बल्कि ज़ाती अमल इश्तराके इंसानियत और ज़मीन के लिए सच्चाई, सेहत और हमआहंगी का राब्ताकार है। ये अक़ीदा कि एक शख्स बतौर रूह दूसरे शख्स को बतौर मादा काबू में कर सकता है, इंसान की साइंस और इनफरादियत दोनों को परेशान कर सकता है, क्योंकि इंसान शबीह है। खुदा इंसान पर इख्तियार रखता है और खुदा वाहिद रूह है। नामनहाद रूह का कोई और इख्तियार या कशिश एक फ़ानी अक़ीदा है जिसे उसके फल के वसीला बदी के तकरार से पहचानना चाहिए।
क्रिश्चियन साइंस में पीछे हटने वाला कोई कदम नहीं है, आगे निकलने वाली हालत से कोई वापसी नहीं है। नाम नेहाद मुर्दा या जिंदा एक दूसरे के साथ शराकत नहीं रख सकते, क्योंकि वो वजूदियत या शऊर की अलग अलग हालत में होते हैं। ताकत की अजीम तर तरक्की की जानब तेजी से बढ़ते हुए गुनाह और अय्याशी की दुनिया में इस बात पर तवज्जो से गौर करना अक्लमंदी है कि आया मुतासर करने वाली अक्ल इंसानी है या इलाही। जो काम यहोवा के अंबिया ने किया वो बाल के परस्तार करने में नाकाम रहे, ताहम चालाकी और फरेब नजरी ने ये दावा किया कि वो हिकमत के कामों के मुसाविक कर सकते थे। साइंस महज नाकाबिल यकीन अच्छाई और बदी के अनासर को वाज़ह कर सकती है जो सामने आ रहे हैं। इन बाद के अयाम से बचने के लिए इंसानों को सच्चाई में पनाह लेनी चाहिए। अब यह मादी दुनिया में मुतसादम क़ुव्वतों का अखाड़ा बन रही है। एक तरफ तो यहाँ मुखालफत और मायूसी होगी, जबकि दूसरी तरफ यहाँ साइंस और अमन होगा। बशरी गलती एक अखलाकी कीमियाई अमल में गायब हो जाएगी। ये ज़हनी उबाल शुरू हो चुका है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक ईमान की तमाम तर गलतियाँ फ़हम को तस्लीम ना कर लें। हकीकत में जितनी ज़्यादा क़ुर्बत के साथ गलती सच्चाई की नकल करती है और नाम नेहाद मादा इसके जौहर फ़ानी अक़ल से मुशाबहत रखता है, उतनी ही कमज़ोर गलती एक अक़ीदे के तौर पर सामने आती है। इंसानी अक़ीदे के मुताबिक रोशनी शदीद और बरक़ी करंट की तेज़ी है, ताहम क्रिश्चियन साइंस में एक की उड़ान और दूसरे की नमोद बेज़रर बनेगी। जितना ज़्यादा मादा तबाहकुन बनता है उतना ही इसका अदम ज़ाहिर होगा, जब तक कि मादा फ़रेब नज़री में इसके फ़ानी ज़वाल तक नहीं पहुँचता और हमेशा के लिए गायब नहीं हो जाता। उस हदूद के बगैर जहाँ इलाही मोहब्बत के वसीला तबाह होते हुए एक झूठा अक़ीदा एक फ़रेब नज़री होना तर्क करते हुए जितना सच्चाई के करीब तर होता जाता है, उतना ही ये तबाही के लिए पकता जाता है। जितना ज़्यादा अक़ीदा मादी होगा उतना ही वाज़ह इसकी गलती होगी, जब तक कि इलाही रूह अपनी सल्तनत में आला तरीन सारे मादे पर गालिब नहीं आती और इंसान रूह की छवि अपनी असल हस्ती में नहीं पाया जाता। वसी तर हक़ाइक़ खुद के खिलाफ बड़ी गलतियाँ तरतीब देते हैं, क्योंकि वो खुफिया तौर पर गलती को लाते हैं। सच बोलने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है, क्योंकि सच्चाई जितनी ज़्यादा अपनी आवाज़ बुलंद करती है, गलती की चीख उतनी ही ऊंची होगी, जब तक कि फरामोशी में इसकी गैर वाज़ेह आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश न कर दिया जाए। अब मैं मेरी बेकरेडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफ़ियों, मुज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज़ के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बायस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।